So selection process. Yes, we discussed selection process. Any doubt in that? No, sir. Okay, so now we move on to next step in the staffing process, that is training and development. What do we mean by this term training? So the process of inculcating various values. Right? Training is the scientific process of improving knowledge, skills, and abilities of employees for doing a particular job. So training is mainly job specific. It aims at improving the knowledge, skills, and abilities of the employees in doing a particular job. Clear? Yes. Yes, sir. Okay. There are various methods of training. We categorize all these methods into two main categories. One is on-the-job training. The other type of methods are off-the-job training. So whenever a question comes in which you have to identify the training method, you should specify both the type of method as well as the method. For example, in on-the-job training, first method is orientation. So if any question comes related to orientation and you are asked to identify or explain it, you should mention both orientation as well as you should say it comes under on-the-job training. Clear? Yes. Okay. So what do we mean by on-the-job training? On-the-job training means learning by doing. The new employee is assigned a specific job and trained in actual work situation by a supervisor. Okay. There is a saying, I heard, I forgot. I saw, I remembered. I did, I learned. Means जो हम सुनते हैं उसमें से कुछ हमें याद रहता है, बहुत भूल जाते हैं. जो हम देख लेते हैं उसमें से ज्यादा याद रहता है, लेकिन जो हम कर लेते हैं वो हम सीख जाते हैं. ठीक है. सो लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग in many cases. So various on-the-job training methods now we'll discuss. First one is orientation. This we have discussed earlier also called induction training. इसमें हम क्या करते हैं? We introduce the new employees to the organization, to the policies of the organization, objectives of the organization, procedures, rules, facilities, other employees, job duties and responsibilities, etc. So that they can adjust to the new environment easily and they can start working comfortably and effectively. Clear? Yes, sir. Okay. Next method is job rotation. Have you visited a bank ever? बैंक गए हो कभी? Yes, sir. Yes, sir. कई बार गए हो? वहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, एक बार आप जाते हो तो कैशियर की सीट पे कोई बैठा है, पासबुक्स अपडेट करने की सीट पे कोई बैठा है, चेकबुक इशू करने की सीट पे कोई बैठा है. आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन यू अगेन विजिट, you see people have changed. The person who was sitting in the cashier's seat is now suppose sitting on the seat of issuing checkbook. The person who was updating the passbooks is not sitting at the cashier's seat. तो ये बहुत कॉमन है बैंक में, बैंक्स में. ठीक है. इसे कहते हैं जॉब रोटेशन. This is also an on-the-job training method where employees are assigned jobs on rotation basis so that they learn various types of jobs. जिससे कि कैशियर को पासबुक अपडेट करनी भी आ जाए, चेकबुक्स इशू करनी भी आ जाए, और बाकियों को भी जो सेम लेवल पे, क्योंकि ये क्लरिकल लेवल है, लेवल सेम है, सेम लेवल पे अलग अलग जॉब करने से जितने भी लोग उस लेवल पे हैं उन्हें
उस लेवल के सब तरह के काम आ जाएंगे, सो दैट इफ एनीवन इज ऑन लीव ऑन अ पर्टिकुलर डे, द अदर पर्सन कैन मैनेज हिज और हर जॉब ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड जॉब रोटेशन। इसका एक तो बेनिफिट होता है कि कई तरह के काम आ जाते हैं एम्प्लॉयज को अपने लेवल के। सेकेंड बेनिफिट इज मोनोटनी इज ब्रोकन। एक ही तरह का जॉब लगातार करते 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 बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जब कुछ दिन बाद रोटेशन होके दूसरी सीट पे आ जाते हैं तो चेंज हो जाता है, तो उस मोनोटनी से, उस बोर्डम से बाहर आ जाते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आपने नोटिस किया होगा जनरली जब आप घर पे इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर को बुलाते हो या पेंट करने के लिए पेंटर्स को बुलाते हो, जनरली two people come, two or more, one of whom is the master, the other is an assistant. नोटिस किया है कभी? Yes, Yes, sir. sir. तो ये मास्टर और असिस्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड द मोस्ट इफेक्टिव वन ऑल्सो। ठीक है, ज्यादातर काम शुरू से लोग इसी मेथड से सीखते थे और आज भी बहुत से काम लोग इसी मेथड से सीखते हैं। व्हाट हैपेंस इज, सपोज आपने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया या प्लम्बर को बुलाया, तो जो मास्टर प्लम्बर या मास्टर इलेक्ट्रीशियन है, जो एक्सपर्ट है, वो मेन काम खुद करता है और उस टाइम असिस्टेंट बड़े ध्यान से उसको ऑब्जर्व करता है और वो असिस्टेंट को बताता भी जाता है क्या चीज कैसे करनी है, क्यों करनी है। एंड small routine type of activities he instructs the assistant to do. तो इससे रूटीन वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें तो असिस्टेंट कर रहा है, साथ साथ सीख रहा है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं उन्हें देख देख के सीख रहा है। और कुछ टाइम तक जब वो देख चुका होता है, कुछ दिन बाद मास्टर इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर जो है वो मेन काम भी थोड़ा थोड़ा उससे करवाना शुरू कर देते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं और वो करता रहता है। In this way, the assistant becomes an expert after a long period of training, and then the assistant becomes an expert और वो अपना independently काम करना शुरू कर देता है, and he keeps an assistant under him. और इस तरह से ये ट्रेनिंग चलती रहती है। This is called apprenticeship training. ठीक है, the trainee works with an expert as an assistant and learns the technical knowledge and craft skills by observing and helping the some sound coming. Okay, now it's okay. Okay, so the assistant learns the technical knowledge and craft skills by observing and helping the trainer. This method of training is generally used in those trades or crafts in which a long time period is required to become proficient. For example, carpentry, plumbing, drawing, etc. Clear? Yes, sir. Next method is internship training. In internship training is also like apprenticeship only, very similar to apprenticeship. सिर्फ डिफरेंस क्या है, जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो और उस प्रोफेशनल कोर्स के करिकुलम में इंक्लूडेड होता है कि आपको किसी एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाके कुछ दिन ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है, जैसे जो डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें किसी हॉस्पिटल में जाके इंटर्नशिप करनी होती है अपनी स्टडीज के साथ साथ। सीए जो पढ़ रहे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उन्हें किसी सीए फर्म में कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक आर्टिकलशिप करनी होती है। सुना है आपने ये सब? Yes, sir. This is called internship training. The professional institutes arrange for a professional training of their students in actual work conditions
in some enterprises. ट्रेनिंग का मेथड वही होता है, द ट्रेनी वर्क्स विद अ प्रोफेशनल एज एन असिस्टेंट एंड लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग एंड हेल्पिंग द प्रोफेशनल. ठीक है, जैसे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, वो डॉक्टर्स के अंडर एज एन असिस्टेंट काम करते हैं. डॉक्टर्स उनसे डिस्कस कर करके पेशेंट्स को ट्रीट करते जाते हैं. रूटीन नेचर के काम उन्हें कहते हैं करने को, और साथ साथ वो असिस्टेंट नोट्स बनाते रहते हैं कि डॉक्टर ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे पेशेंट से, फिर क्या डायग्नोसिस किया, क्या टेस्ट करवाए, रिपोर्ट के बेसिस पर क्या ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की, एंड थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनको उनका रोल बढ़ाते जाते हैं डॉक्टर्स. And in this way they learn along with their theory classes. By doing this internship they learn the how to treat patients. ठीक है. Similarly जो मैनेजमेंट ट्रेनीज होते हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल मैनेजर्स के अंडर काम करते हैं एज असिस्टेंट्स. तो मैनेजर्स रूटीन नेचर के छोटे छोटे काम उनसे कराते हैं शुरू में, और इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में उन्हें इन्वॉल्व करते हैं डिस्कशंस में. धीरे धीरे उनका रोल बढ़ाते जाते हैं जिससे कि वो मैनेजरियल वर्क को समझते हैं अच्छे से. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट मेथड इज कोचिंग. व्हाट इज कोचिंग? बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आजकल खुले होते हैं. आप में से बहुत से लोग जाते भी होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में. क्या मतलब होता है कोचिंग का? So there's a teacher which guides large number of students Okay. and explains concepts, education purposes. Okay. Absolutely right. इसमें सिर्फ एक छोटी सी करेक्शन मैं करना चाहूंगा. नॉट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कोचिंग नहीं होती. कोचिंग में आप अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, स्पोर्ट बेस्ड मूवी आपने कोई देखी है? स्पोर्ट्स बेस्ड चक दे इंडिया, Yes, sir. है ना, सूरमा, गोल्ड, मेनी मूवीज आर देयर बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स. उनपे अगर आप देखो कोच का रोल, वहां से आपको समझ में आएगा कोचिंग का मतलब क्या होता है. कोच बहुत सारे स्टूडेंट ट्रेनीज को नहीं सिखाता है, कुछ लिमिटेड ट्रेनीज को सिखाता है, पहली बात. दूसरा, सपोज हम क्रिकेट या हॉकी किसी भी स्पोर्ट की बात करें, अगर कोच खुद ही मोस्ट ऑफ द टाइम खेल के दिखाता रहे, लुक ऐसे खेलना होता है, लुक ऐसे खेलना होता है, ठीक है, और प्लेयर्स को बहुत कम चांस दे खेलने का, उन्हें कहे बस तुम मुझे देखते जाओ और कॉपी करते जाओ, दैट्स ऑल, विल द प्लेयर्स लर्न वेल? No, sir, because they haven't applied themselves. Yes, absolutely. तो जो अच्छे कोच होते हैं वो खुद कम खेलते हैं, वो सिर्फ एक बार टेक्निक बता दी कि ये टेक्निक्स है, देखो इस सिचुएशन में ये टेक्निक यूज कर सकते हो, इस सिचुएशन में ये टेक्निक एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर दिया. उसके बाद प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं, अगर प्रैक्टिस करने को कहते हैं, और जितनी ज्यादा प्लेयर्स प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना ज्यादा अच्छे से दे लर्न. ठीक है, और प्रैक्टिस करते हुए द कोच ऑब्जर्व्स देम, एंड इफ द कोच फाइंड्स दैट दे आर लैकिंग समवेयर और दे आर नॉट डूइंग समथिंग प्रॉपरली, then after some time the coach again guides them as to what they are doing wrong and how they need to correct it. ठीक है, so that is proper coaching. लेकिन कोचिंग के नाम पे जो आपने कहा था आजकल हो क्या रहा है, एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो वो कोचिंग है ही नहीं. दूसरा, मोस्टली कोचिंग सेंटर्स में क्या करते हैं, स्पून फीडिंग करते हैं, खुद क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है, और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करवाई, खुद क्वेश्चन भी खुद ही दिए, सॉल्यूशन भी खुद ही दे दिए, नोट्स भी खुद ही दे दिए, स्टूडेंट्स को कहा बस मगअप कर लो. तो दैट इज नॉट कोचिंग. उससे आपकी लर्निंग नहीं होगी प्रॉपर कभी भी, उससे आप हमेशा डिपेंडेंट रह जाओगे. जो एक अच्छा कोच होता है उसकी कोशिश होती है कि मेरे स्टूडेंट्स सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, उन्हें इस तरह से ट्रेनिंग दो कि कुछ टाइम के बाद इन्हें मेरी ज्यादा गाइडेंस की जरूरत ही ना रहे, अपने आप प्रैक्टिस से सीखना सीख जाएं, एंड जब बहुत ज्यादा कोई गाइडेंस की जरूरत हो तभी मेरे पास आए. ठीक है, सो दैट इज द प्रॉपर कोचिंग. सो रिमेंबर, जब भी कोई
अच्छे टीचर होंगे, एक्चुअली अच्छे, ये आपको हो सकता है लाइफ में बाद में रियलाइज हो कुछ साल बाद। जो अच्छे टीचर होंगे वो होंगे जो खुद एक बार टेक्निक बता देंगे, कॉन्सेप्ट बता देंगे और फिर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने को कहेंगे। जो टीचर्स खुद ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहेंगे, खुद ही प्रैक्टिस करके कहेंगे देखो कॉपी कर लो, मगअप कर लो, दे आर नॉट गुड टीचर्स, बिकॉज देन दे आर हिंडरिंग योर लर्निंग। आपकी प्रॉपर लर्निंग हो ही नहीं पाएगी, तब आप उन पे डिपेंडेंट रह जाओगे हमेशा। गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. A coach guides and instructs the training by setting mutually agreed goals, suggesting how to achieve the goals, periodically assessing the progress, and suggesting changes to be brought to improve behavior and performance. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now we come to off-the-job training methods. Off-the-job means learning before doing. अभी जो आपकी ट्रेनिंग कौन से मेथड से चल रही है, ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब? अभी आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग चल रही है ये इस क्लास में, तो ये ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब है? Off the job. Off the job, because you are not actually working in any organization right now. So this is off the job training, learning before doing. ठीक है? Although कोशिश मेरी रहती है इसे थोड़ा आपको ऑन द जॉब वाला फील देने की, क्योंकि मैं आपको कहता हूं इमेजिन करो कि आप मैनेजर हो और आपको फिर डील करना है प्रैक्टिकल सिचुएशन से। वो विजुअलाइज करके जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझोगे तो आपकी लर्निंग और बेटर होगी। ट्रेनिंग गिवन अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्कप्लेस इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें फर्स्ट मेथड है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। हैव यू प्लेड वीडियो गेम्स एवर or you have seen people playing video games? Yes, sir. See. आपने देखा होगा ना, गेम पार्लर्स बने होते हैं, वहां पे लेटेस्ट से कोई बाइक वाली गेम है, तो जो प्लेयर है वो एक्चुअल बाइक ही बनी हुई है वहां पे, वो बाइक पे बैठता है और सामने स्क्रीन पे उसे ऐसा ही दिखाई देता है जैसे एक्चुअल रोड पे हो, रोड का सीन हो, और जिस बाइक पे वो बैठा है उस पे कंट्रोल भी सारे रियल बाइक जैसे होते हैं, ब्रेक्स, एक्सीलरेटर, एवरीथिंग। ठीक है? एंड Yes. while playing that game, the player gets an experience as if he or she is actually driving a bike on the road. This is called vestibule. जो अच्छे ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, मारुति वालों का है, गवर्नमेंट का है, यहाँ पर पहले थियरी लेक्चर्स दिए जाते हैं ट्रेनिंग्स को, ड्राइविंग जो सीखने आते हैं, कि बेसिक ट्रैफिक रूल्स बताए, किस व्हीकल के किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, थियोरेटिकली वो बताया। फिर उन्हें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दी जाती है, यानी सिम्युलेटर, इन्हें सिम्युलेटर्स कहते हैं इन मशीन्स को। सपोज कोई कार ड्राइविंग सीखने आया है तो उसे एक कार में बिठाएंगे जो कि सिम्युलेटर होगी, कार की विंड स्क्रीन पे एक्चुअल कंप्यूटर स्क्रीन होगी वो, और लर्नर को बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे वो एक्चुअल रोड पे ड्राइव कर रहा है, क्योंकि स्क्रीन पे सामने बिल्कुल उसी तरह के सीन आते रहेंगे जैसे एक्चुअल रोड पे है, और ब्रेक, एक्सीलरेटर वगैरह सब कुछ बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करेगा एक्चुअल कार की तरह। एक बार जब उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं लर्नर, फिर उन्हें एक्चुअल कार में बिठा के एक्चुअल रोड पे ट्रेनिंग दी जाती है फाइनली। सो दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। पायलट्स को भी इसी तरह से डायरेक्टली किसी को पायलट ट्रेनिंग में एक्चुअल प्लेन में बिठा के अगर ट्रेनिंग देंगे तो सोचो कितना डेंजरस हो जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक उसने की और पूरा प्लेन क्रैश। तो पायलट्स की ट्रेनिंग भी ऐसे ही होती है, पहले थियरी क्लासेस, फिर सिम्युलेटर्स होते हैं। सिम्युलेटर्स में वो बैठते हैं, उन्हें लगता है बिल्कुल जैसे एक्चुअल एरोप्लेन के कॉकपिट में बैठे हैं, सारे कंट्रोल एक्चुअल एयरप्लेन जैसे होते हैं, सामने स्क्रीन भी ऐसी होती है जैसे उन्हें एक्चुअल एयरक्राफ्ट में स्काई में फील होगा, वो सिम्युलेटर हिलता भी है, वाइब्रेट भी होता है, बिल्कुल वैसे ही। सो दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज गिवन फॉर स्पेसिफिक जॉब्स in a place away from actual work. This place is called vestibule and the actual work situation is duplicated here. Here? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मेन बेनिफिट क्या होता है?
कि जो थोड़े रिस्की काम है, डेंजरस काम है, जिसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा हैं, उसमें ये मोस्ट सुटेबल मेथड है कि पहले एक बार वेस्टिब्यूल मेथड में once the learner starts performing well on the simulator, then place him or her in the actual situation. Before that, let the learner be trained in a simulator, in a vestibule, जहां पर अगर एक्सीडेंट हुआ भी तो कोई नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला है as such. Second is lectures or conferences. ये मेथड अभी हम फॉलो कर रहे हैं. The experts explain concepts to a group of learners. Specific information, rules, procedures, or methods can be effectively conveyed through lectures or conferences, and the learners can ask their doubts also. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next is films. Audio visual means. ठीक है, सपोज किसी को आपने सिखाना है कि हाउ टू मेक अ, लेट अस से आपने एक घर पे केक बनाना है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपने बनाना है, हाउ विल यू गो अबाउट इट, व्हाट विल यू डू? Sir will watch a YouTube video. वेरी गुड, यू विल वॉच अ वीडियो. आजकल मोस्टली लोग क्या करते हैं, कोई भी नई चीज करनी है, नहीं समझ आती, जो कि उन्हें आती नहीं है, दे गो एंड दे वॉच अ वीडियो हाउ टू डू दिस थिंग, हाउ टू मेक अ केक ऑन इंटरनेट. दे वॉच अ वीडियो, दे लर्न इट, देन अगेन दे वॉच इट, और हर स्टेप पे पॉज करते जाते हैं और साथ साथ करते जाते हैं जो बताया जा रहा है, एंड दिस वे दे लर्न. So this is film method. Film method मतलब audio visual method. You watch a audio video of the thing you want to learn, and through that you get training. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next is case study. Case study आपने नोटिस किया होगा, आपकी बुक में भी हर चैप्टर के एंड में कुछ केस स्टडीज दी हुई हैं. What are case studies? Case studies are real life situations. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन अ, मैं भी कई बार आपको डिस्कशन में कहता हूं, सपोज आपको ध्यान होगा मैंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिस्कस करते हुए कई ऐसे एग्जाम्पल लिए थे. वन एग्जाम्पल आई एम रिपीटिंग, 2 employees are late, one who is a habitual latecomer, another who is a very punctual employee, but because he got stuck in a traffic jam today, so he is late. Should the manager deal with them in the same manner or not? दो आंसर. Not in the same manner. नॉट इन द सेम मैनर, क्योंकि जो हैबिचुअल लेट कमर है उसके अगेंस्ट तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, और जो जेन्युइन रीजन की वजह से लेट Yes, होता sir. है उसके लिए कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको बोलना चाहिए कि तुम परेशान होकर आए हो, थोड़ी देर बैठो, पानी पियो, स्टार्ट वर्किंग आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. ठीक है, सो अब ये सिचुएशन जब हमने ली, मैंने जैसे ये सिचुएशन आपके आगे रखी, ये क्या हो गई, केस स्टडी हो गई, एक रियल लाइफ सिचुएशन हो गई, और उस पे आपने डिसीजन लिया, उस पे हमने डिस्कशन की. दिस इज केस स्टडी मेथड ऑफ ट्रेनिंग. ठीक है, इसी तरह से डॉक्टर्स को रियल पेशेंट्स की सिचुएशन दी जाती है, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को, एंड दे आर आस्क्ड टू स्टडी द सिचुएशन एंड देन डिस्कस व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. और फिर वो जो डिस्कस करते हैं उस पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स फिर अपने कमेंट देते हैं. Real life situations from organizations are presented to the trainees, and they are asked to study the situation in detail and work out effective and practical solutions to problems presented in those situations. Clear? Yes, sir. Yes, sir. फिर नेक्स्ट मेथड है कंप्यूटर मॉडलिंग. एनिमेशंस के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, कई चीजें ऐसी होती हैं. फॉर एग्जांपल, आपने किसी को फंक्शनिंग ऑफ अ हार्ट सिखाना है मेडिकल साइंस में, ठीक है, तो आप एक्चुअल कोई हार्ट फंक्शन करता हुआ तो नहीं दिखा सकते, तो ग्राफिक्स के थ्रू, एनिमेशन के Yes. थ्रू आप बड़े इजीली दिखा सकते हो कि कैसे हार्ट फंक्शन करता है. इसी तरह से अगर किसी को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिखाना है कि कोई इंजन कैसे फंक्शन करता है इंटरनली, इंजन को खोल के तो चला नहीं सकते, but through animation, Yes. through the use of graphics, it can be shown
very clearly and very effectively how an engine functions internally. So this is computer modeling. Clear? Yes, sir. Next Yes, sir. method is programmed instructions. कंप्यूटर प्रेजेंटेशंस के थ्रू, ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा हम यूज कर रहे हैं. आपकी स्क्रीन पर नोट्स आ रहे हैं जिनको मैं मूव करता जा रहा हूं, ठीक है, या फिर यही स्लाइड्स के थ्रू भी हो सकता है. जैसे कल हमने वो देखे थे टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, Yes, sir. हमने 2-3 स्लाइड्स देखी थी. तो एक स्लाइड आई उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आई, सेकंड स्लाइड आई उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आई, और एंड में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए. तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस. क्लियर? Yes, sir. So any doubt in any of the methods? We have discussed all the training methods. No, sir. Good. No, sir. Another term related with training is development. Are they same or are they different? There is a difference. So development is a broader term. Yes, very good. Development is a broader term. ट्रेनिंग हम किसी एक चीज की देते हैं, उसके बाद हमने किसी और चीज की ट्रेनिंग दी, फिर किसी और चीज की ट्रेनिंग दी, तो धीरे धीरे क्या हो रही है? डेवलपमेंट. जैसे राइट नाउ एज स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम यू आर गेटिंग ट्रेनिंग ऑफ बिजनेस स्टडीज, you are getting training of accountancy, you are getting training in economics, you are being trained in values also simultaneously, value education also, physical education also. तो ये सारी तरह की ट्रेनिंग मिलकर आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप कर रही है. सो डेवलपमेंट इज ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. आई रिपीट, ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. अब ऑर्गेनाइजेशन में हम एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका तो ट्रेनिंग के थ्रू ही हो गया. उन्हें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देते रहो. कभी जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग दी, कभी कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड ट्रेनिंग दी, कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी, ठीक है, कभी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग दी. तो इस तरह से उनकी डेवलपमेंट होगी. सेकेंडली, प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो and achieve their full potential. Whenever an opportunity arises, promote them, give them higher responsibilities. This will also lead to their development. Clear? Yes, sir. Now we come to importance or benefits or merits or advantages of training and development. चाहे क्वेश्चन में आपसे ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स पूछे जाएं, चाहे डेवलपमेंट की, पॉइंट्स सेम रहेंगे. अब इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे, बेनिफिट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉइज themselves. फर्स्ट, बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, पहले आप लोग बताओ क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? So the organization will get better employees. वेरी गुड. और They will have high productivity. yes, absolutely. Okay, let's see now. First point is improved performance. If employees are not trained properly, they will not be able to perform their work well. On the other hand, well-trained employees will do their work in a highly efficient and effective manner. Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Better than hit and trial methods. Hit and trial methods, ये इससे कुछ याद आया? Hit and trial methods पहले भी कहीं बात हुई थी इसकी? साइंटिफिक मैनेजमेंट में फर्स्ट प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, उसमें हमने ये डिस्कस किया था. सिस्टमैटिक मेथड शुड बी डेवलप्ड एंड फॉलोड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल क्या होता है कि चलो ये करके देखते हैं, नहीं हुआ काम, चलो दूसरा तरीका ट्राई करते हैं, नहीं हुआ, चलो तीसरा ट्राई करते हैं. तो इन दिस मैनर अ लॉट ऑफ टाइम and energy and effort is wasted, and
there may be losses also, delays also. और ये कब होगा? जब उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली होगी एम्प्लॉइज को, तो वो अलग अलग तरीके अपनी तरफ से ट्राई करेंगे. बट व्हेन दे हैव बीन गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग, they will be able to do every work systematically as they have been trained. Clear? Yes, sir. So, and it also makes the employees safety conscious. Third is effective response to changing environment. Business environment keeps changing. So whenever the environment changes, we may have to make some changes in our organization also, in the way of working, in the techniques we are using. Whenever we Yes, bring sir. some changes, now many employees are not familiar with those changes. So we need to give them training. By giving them training, we can make them understand the changes, how to use those changes, how to adjust to those changes, and then they can comfortably and easily adopt all those changes. Clear? Yes, sir. Development of future managers. By getting training again and again, the skills of the employees improve. And in future, whenever the need arises, whenever an opportunity arises at a higher position, they can be promoted and they can handle that responsibility well because they are well trained. Further, when they take up that higher responsibility, further training can also be given to them related to that higher position, which will help them further in accepting and fulfilling the responsibilities of that higher position. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next point, high morale, low absenteeism. Just think, अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहां पे आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, देयर इज नो ट्रेनिंग गिवन, ठीक है, और बस काम करना है आपको, और काम आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, हाउ विल यू फील? Frustrated, confused? Will you feel like going to work? No, sir. No. So you will be demotivated, मतलब low morale, and आप बहाने ढूंढोगे छुट्टी लेने की क्योंकि काम में आपका मन नहीं लग रहा. So absenteeism will be more. इसका opposite होगा अगर employees well trained हैं तो वो अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं तो उन्हें satisfaction मिलती है. जब हम कोई काम अच्छे से कर पाते हैं तो हमें बड़ी satisfaction मिलती है. आपने नोटिस किया होगा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर पाते हो तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और नहीं कर पाते तो कितना तो गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है. तो अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हैं तो आप कर पाओगे, और फिर और क्वेश्चंस करने का मन करेगा जब कर पाओगे तो. सेम हैपेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन एम्प्लॉइज आर वेल ट्रेन्ड, दे आर एबल टू परफॉर्म वेल, दे फील लाइक वर्किंग, सो they are highly motivated and they take lesser leaves, so absenteeism is also low. Clear? Yes, sir. Yes, Any doubt, sir. anyone? We stop here for today. Any doubt, anyone? No, sir. Okay, thank you. Thank you, Thank sir. you, sir.